بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زنا ایک حرام کام ہے اور اس کام سے بار بار منع کیا گیا ہے، اور خاص طور پر شادی شدہ عورتیں جب اپنے شوہر کو چھوڑ کر کسی غیر مرد سے تعلق رکھتی ہیں تو ایسا گناہ تو بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ بعض اوقات غیر مردوں کے ساتھ بات چیت کرنے اور دوستی کو بہت ہی زیادہ عام سمجھا جاتا ہے، لیکن دراصل گناہ کی جانب پہلا قدم یہی ہوتا ہے، اور یہی ہوا ایک ایسی لڑکی کے ساتھ کہ جس نے آنکھ کھولی ایک مسلمان گھرانے میں، لیکن جہاں پر وہ رہتی تھی اس جگہ کافر تھے، ہندوؤں کی بھرمار تھی، اور وہ لڑکی اس جگہ تنہا اپنے آپ کو محسوس کرتی۔ اس کے گھر والے بہت شریف تھے، مذہبی گھرانہ تھا، خاص طور پر اس کے والد صاحب اللہ کے بہت ہی قریب تھے، یعنی امام مسجد تھے۔ وہ اسلام کو اچھا نہیں سمجھتی تھی اور کہتی کہ دین اسلام میں عورت پر بہت زیادہ جبر ہے، آزادی ہی نہیں ہے۔ خاص طور پر ایک ایسے دینی گھرانے میں جب وہ پیدا ہوئی تو وہاں پر تو ہر کوئی اللہ اللہ کرنے والا تھا۔ ایک بار اس کی چپکے سے ایک لڑکے کے ساتھ دوستی ہو گئی۔ اس کے والد صاحب کو یہ خبر نہیں تھی، وہ یہی سوچتی تھی کہ دین اسلام میں جبر ہے عورت کے لیے اور ہر بات سے منع کیا جاتا ہے، جو کہ یہ اس کی خوش نصیبی تھی، جس کو وہ بدقسمتی سمجھتی تھی کہ میں اس گھر میں پیدا ہوئی ہوں جہاں پر ہر وقت اللہ اللہ کیا جاتا ہے۔ یہاں پر میرے والد صاحب صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں، میری والدہ بھی یہی کرتی ہیں، یہاں تک کہ میری بہنیں بھی انہی کے نقش قدم پر چل رہی ہیں، لیکن نہ جانے کیوں اس کے دل میں بہت ہی زیادہ برائی تھی، اور اسے ایک موقع مل گیا اس بستی میں رہ کر ہندو لڑکے سے دوستی کرنے کا۔ وہ اس طرح کہ ان کے گھر میں لڑکیوں کو پڑھانے کا رجحان تھا، اور اس کے والد صاحب چاہتے تھے جس طرح انہوں نے مذہبی علوم حاصل کیے ہیں، دینی تعلیم حاصل کی، ان کی بیٹیاں بھی اعلیٰ پائے پر علم حاصل کریں اور دین اسلام کو فروغ دے۔ ان کے گھر میں خاص طور پر عورتوں کو تعلیم دینے کا بہت زیادہ رجحان تھا، لیکن اس تعلیم کا اس نے غلط فائدہ اٹھایا۔ وہ گھر سے نکلتی ضرور تھی، مدرسے جاتی تھی، لیکن راستے میں اس کی دوستی ہو گئی ایک ہندو سے، جس نے اس کے حسن کو دیکھا تو اس کا دیوانہ ہو گیا، اور وہ تو چاہتی ہی یہی تھی کہ اپنے مذہب سے دوری اختیار کرے۔ اس نے فوراً اس سے دوستی کر لی، اور اب وہ مدرسے جانے کے بہانے اس غیر مسلم دوست سے ملتی، وہ آپس میں قریب سے قریب آتے جا رہے تھے۔ ایک بار اس نے کہا، تم تو مسلمان ہو، لیکن تم کس طرح مجھ سے ملتی ہو؟ میں تو غیر مسلم ہوں، اور میرا مذہب تو تمہارے مذہب سے بالکل الٹ ہے۔ تو وہ کہنے لگی، میں اپنے مذہب کو پسند نہیں کرتی، میں اپنے والد صاحب کو دیکھتی ہوں، ہر وقت وہ تسبیح پڑھتے رہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دین میں لڑکیوں کو باحیا ہونا چاہیے، گو کہ وہ لڑکیوں کی تعلیم کے بالکل بھی خلاف نہیں، اور چاہتے ہیں کہ ہم اچھے سے دینی تعلیم حاصل کریں۔ میرا دل نہیں لگتا، نہ جانے کیوں، جب سے آنکھ کھولی ہے اور ہوش سنبھالا ہے، میرے دل میں میرا مذہب گھر نہیں کر سکا۔ تو وہ لڑکا کہنے لگا، تم کیا چاہتی ہو؟ لڑکی بولی، میں چاہتی ہوں مذہب کو چھوڑ دوں۔ لڑکا بولا، لیکن تمہارے والد صاحب ناراض نہیں ہوں گے؟ لڑکی بولی، ان کو کون بتائے گا کہ میں اپنے مذہب سے نکل چکی ہوں؟ اس لڑکے کو تو گویا موقع مل گیا تھا کہ ایک مسلمان لڑکی ایک مذہبی گھرانے کی ہونے کے باوجود، یعنی ایک نیک اللہ والی کی بیٹی ہونے کے باوجود اپنے مذہب سے نکلنا چاہتی ہے، غیر مسلم ہونا چاہتی ہے، تو اس کے لیے بہترین موقع تھا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، تم اپنے مذہب سے بالکل ہی نکل جاؤ، اور کبھی بھی آپ نماز نہیں پڑھنا، اور یاد رکھنا کہ خدا کی عبادت بھی نہیں کرنا، کیونکہ ایک خدا نہیں ہے، اس پوری دنیا کو بہت سارے خدا مل کر چلا رہے ہیں۔ وہ کہنے لگی، تم نے صحیح کہا۔ اس لڑکے نے کہا، سب سے پہلے میں تمہاری ملاقات اپنے خدا سے کرواتا ہوں۔ ایک بت اس کے گھر میں رکھا ہوا تھا،
जिस को वो बहुत मानता था। उसने कहा, मैं उनका मानने वाला हूँ, मैं उनसे जो मांगता हूँ ये मुझे वो दे देते हैं, मेरी हर ख्वाहिश पूरी हो जाती है। और देखो, जब से तुम्हें देखा है, जब से मैं तुम्हारे इश्क में गिरफ्तार हुआ हूँ, मैंने उनके ही आगे हाथ जोड़े थे और देखो तुम मेरे पास आ गई, बल्कि तुम मेरे मजहब में दाखिल होना चाहती हो। अब वो लड़की अपने बाप के सामने, अपने घर वालों के सामने तो बज़ाहिर मुसलमान बनी रहती, ढोंगी रहती, रचाती रहती, लेकिन मदरसा जाने के बहाने वो उसके घर चली जाती और वो लड़का वहाँ बैठकर अपने मजहब के मुतालिक उसे बताता। यहाँ पर घर वालों को झांसी दे रही थी कि मैं मदरसे जाती हूँ और वहाँ पर बहुत देर हो जाती है आने में, अपनी बहनों को भी अपने साथ लेकर नहीं जाती थी और वो रोज वहाँ से जाते जाते रास्ता बदल लेती थी और उस लड़के के साथ जाकर जिनाकारी करती। गर्ज के वो गुनाहों के दलदल में इतना डूब चुकी थी कि उसे ये खबर भी नहीं थी कि वो अपने आप को तबाह कर रही है। ना सिर्फ अपने आप को तबाह कर रही है, बल्कि दुनिया और आखिरत भी उसकी बर्बादी की तरफ जा रही है। वो जहन्नुम के गड्ढे में खुद को गिराने के लिए तैयार थी, बल्कि गिर ही चुकी थी। वो लड़का उसकी कमजोरी से फायदा उठा रहा था। वो मनमानी उसके साथ करता और वो हर रात उसके साथ गुनाह कबीरा करती और गुनाह कबीरा करके अपने घर आ जाती। एक बार उसके वालिद साहब को शक हुआ। उन्होंने कहा, बेटी, मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ कुछ अलग मामला पेश आ रहा है। मुझे जरा बताओ कि तुम मदरसे जाकर क्या क्या सीखती हो और अब तुम पाबंदी के साथ मदरसे जाती भी हो और देर तक वापस आती हो। बेहतर यही है कि तुम मुझे सब कुछ सच बता दो। उसने कहा कि सच सुनने की ताब ला सकते हैं आप? वो कहने लगे, हाँ बिल्कुल। उसने कुरान खोले बगैर कुरान करीम की तवील सूरत मुबारका पढ़कर सुना दी और कहा, बताइए, अब इतनी लंबी सूरत में आपको सुना रही हूँ, पाबंदी से जाती भी हूँ और रात को देर तक वापस आती हूँ, मैं कुरान को हिफ्ज कर रही हूँ। उसके वालिद साहब बहुत खुश हुए कि मेरी बेटी कोई भी गलत काम नहीं कर रही, बल्कि ये सच में कुरान की तालीम हासिल करने जा रही है। यहाँ पर आप सब हैरत ज़दा होंगे कि वो लड़की तो उस लड़के के साथ रहती है, फिर कैसे उसने कुरान की इतनी तवील सूरत मुबारका याद कर ली? वो इस तरह कि वो लड़का बहुत चालाक था। उसने कहा कि तुम मेरे पास आती हो, मेरे साथ रहती हो, बुत की इबादत भी करती हो, लेकिन तुम्हें अपना कुरान भी पढ़ना है। गो कि तुम अपने मजहब को पसंद नहीं करते, लेकिन तुम्हें कुरान को मुकम्मल याद करना है। कभी अगर तुम्हारे वालिद साहब ने तुम पर शक किया और अगर कभी फरमाइश की कि कुरान पढ़ने जा रही हो तो बताओ कौन कौन सी सूरतें याद हैं, तो कुरान की सबसे तवील सूरत सुना देना, वो चुप हो जाएंगे। कुरान पाक उसके हलक से ऊपर तक था, दिल में नहीं उतरा था। इसी वजह से याद तो कर लिया पर दिल पर कोई असर ना हुआ। यहाँ पर अपने वालिद को तो उसने चकमा दे दिया, लेकिन क्या अल्लाह ताला को भी वो धोखा दे सकती थी? हरगिज़ नहीं। मेरा रब तो तन्हाई में गुजारे हुए लम्हात बैठकर जो इंसान सोच रहा होता है तब भी उस बात को जानता है। वालिद को बेवकूफ बनाकर समझ रही थी कि मैं तो बरीउज़्ज़मा हो गई, अब मुझे कोई भी नहीं पकड़ सकता, लेकिन अल्लाह ताला की पकड़ सबसे ज्यादा सख्त है। एक रात जब वो गुनाहों के दलदल में घिरी हुई थी और गहरी खाई में गिरती जा रही थी और मुसलसल झूठ बोल रही थी कि मैं कुरान पढ़ती हूँ, कुरान की तालीम हासिल करती हूँ। एक रात जब वो उस लड़के के साथ पूजा करने के बाद उसके साथ गुनाह कबीरा कर रही थी, उसी वक्त मौत का फरिश्ता आया और उसकी रूह को कब्ज कर लिया। मौत ये नहीं देखती कि सामने वाला जवान है या बूढ़ा, बस अपने वक्त पर आ जाती है। इसलिए इंसान अच्छी हालत में इस दुनिया से जाए, क्योंकि उसके बाद तो सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। बरहना हालत में बंद कमरे में उस दोस्त के साथ वो मौत के मुंह में जा चुकी थी। वो हिंदू लड़का उस लड़की की अचानक मौत पर बहुत परेशान हुआ। उसको बाहर ला नहीं सकता था, किसी से उसका जिक्र नहीं कर सकता था। उसको समझ ना आया तो घर के सहन में उस लड़की की बरहना लाश को फेंक दिया, यानी कपड़े से लपेटा भी नहीं, उसी हालत में उसने उसके सहन में उस लाश को फेंक दिया और जमीन को बंद कर दिया। उसके पसीने छूट रहे थे, कहीं मुझ पर इल्जाम न लग जाए। बहरहाल यहाँ वो मुंह छुपाकर बैठा हुआ था और इधर उस लड़की के वालिद सरापा हैरत बने हुए थे, परेशान थे कि बेटी आ तो जाती है, बेशक रात को देर से आती है,
लेकिन अब तक क्यों नहीं आई। वालिद साहब ने वालिदा को इत्मीनान दिलाया कि उस्ताद उसे अकेले में कुरान की सूरतें याद कराते हैं, यही वजह है कि बेटी अब तक नहीं आई। लेकिन माँ का दिल घबरा रहा था। वो कहने लगी, मुझे कोई और ही मामला लगता है, आप जाइए और मदरसे में जाकर मालूमात हासिल करें, मेरी बेटी अब तक क्यों नहीं आई। बहरहाल आधी रात के वक्त वालिद साहब मदरसे पहुँचे और वहाँ जाकर मालूमात की। पता चला कि सारी लड़कियाँ तो जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी को कौन पढ़ाता है, कोई मुअल्लिमा है। उन्होंने कहा, क्या मुअल्लिमा मुझसे बात कर सकती है। बापर्दा होकर वो मुअल्लिमा उनके सामने आई और कहा, क्या मेरी बेटी आपके पास देर तक कुरान पढ़ती है। तो वो हैरत से उन्हें देखने लगी कि कौन सी बेटी, किसकी बेटी। आपकी बेटी को आज तक मैंने यहाँ नहीं देखा, लेकिन वो तो आती थी, हुलिया भी मैंने आपको बताया है। तो वो कहने लगी, इस हुलिये की लड़की आती तो थी, लेकिन तकरीबन 1 महीने से ज्यादा हो गया है वो मेरे पास नहीं आ रही थी। रात में वो कहाँ जाती है मुझे क्या मालूम, लेकिन यहाँ पर आपकी बेटी नहीं आती। ये कहकर वो मुअल्लिमा अंदर चली गई। अब बाप परेशान सर पीट रहा था कि आखिर मेरी बेटी ने मुझे धोखा दिया, लेकिन कुरान कैसे उसे याद था। जरूर वो कहीं और पढ़ने जाती होगी। अपने इलाके के सारे मदरसों को देख लिया, लेकिन वहाँ पर उनकी बेटी ना मिली। बल्कि कहा गया कि हमारे मदरसे की बच्चियाँ तो मगरिब तक चली जाती हैं, आपकी बेटी की तरह किसी लड़की को यहाँ नहीं देखा गया। बाप ने सिपाहियों को इत्तला दी। सिपाही पूरे मोहल्ले में उस लड़की की तलाश करते रहे। आखिरकार वो वहाँ पर हिंदुओं की बस्ती के पास भी पहुँचे और तमाम हिंदुओं से पूछा तो वो कहने लगे, इस तरह की कोई लड़की हमारे पास नहीं आई। वो लड़का उसी बस्ती में रहता था। उसके घर का दरवाजा भी खटखटाया गया। जब वो दरवाजा खटखटाया गया तो उसने बड़ी मुश्किल से दरवाजा खोला। दरवाजा खोलने पर वो लड़का बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थी। सिपाहियों को शक हो गया। उन्होंने कहा, हमें लगता है आपकी बेटी यहीं पर है। वालिद साहब बोले, ऐसा कैसे हो सकता है, ये गैर मुस्लिम लड़का है, मैं मुसलमान हूँ, मेरी बेटी मुसलमान है, एक हिंदू के घर में वो क्या करेगी। सिपाही बोले, देखें कुछ खबर नहीं हो सकता आपकी बेटी अंदर हो। खैर उस लड़के को एक तरफ हटाकर जब घर में दाखिल हुए तो वहाँ कोई भी ना था। उस लड़के से पूछ हुई। कहा कि बताओ कहाँ है वो लड़की और तुमने उसे मार कर कहाँ फेंका है। उसने कहा, मैंने उसे नहीं मारा, वो तो खुद मर गई। उस लड़के ने अपने आप को बचाने के लिए सच कह दिया था। लेकिन सिपाहियों ने कहा, अगर वो लड़की इसी घर में है तो कहाँ है। उसने बताया कि घर के सहन में मैंने उसे डाल दिया है। बाप को ये सुनकर सदमा पहले ही हो गया था कि उसकी बेटी यहाँ पर मौजूद थी, एक गैर मुस्लिम के साथ, जहाँ पर जगह जगह बुतों की तस्वीरें लगी हुई थी। एक बहुत बड़ा सबूत उसके कमरे में था। वो पहले ही सदमे से 2-4 था और जब ये बात सुनी कि बेटी उस लड़के के घर में मरी है तो ये सुनकर उसके होश उड़ गए। सिपाहियों ने उस लड़की की वजह से सहन खोदना शुरू किया। गड्ढा ज्यादा गहरा नहीं था। सामने ही जो मंजर सबने देखा, उस मंजर को देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। उसके जिस्म पर ना कफन था, ना ही कोई कपड़ा था, जबकि उस लड़की के पोशीदा छुपे हुए आज़ा मुकम्मल तौर पर गल सड़ चुके थे। और यही नहीं, उसके जिस्म को लपेटा हुआ था एक बहुत बड़े सांप ने। उसकी जबान बाहर को लटकी हुई थी और उसकी जबान पर वो सांप बार बार डस रहा था। जब एक बिच्छू चलता हुआ आया और उसके जिस्म को काटने लगा, वो मंजर सब देख रहे थे। ये वो अजाब था जो उस लड़की पर जिना के गुनाह की वजह से आया था। शरीफ और बाहया मर्द और औरत तो उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते, और वो तो एक ऐसे दीनी घराने से ताल्लुक रखती थी कि उसका बाप एक मस्जिद का इमाम था। वालिदा हया का पैकर थी। अब वालिद साहब अपनी बेटी को ऐसी हालत में देखकर तड़प कर रह गए, पर वो जानते थे कि अब उस जगह से निकल नहीं सकती। मजबूरन उसी जगह उसके जिस्म पर कपड़ा डाल दिया गया और वो सांप उसे छोड़ भी नहीं रहा था। कीड़े मकोड़े उसके जिस्म को खा रहे थे। उसी जगह उसे दफनाया गया। आज भी उस हिंदू लड़के के घर में उसकी कब्र मौजूद है, लेकिन चीखों की आवाज आती है और चीख चीख कर कह रही होती
بولتی ہے مجھے بچا لو، مجھے بچا لو، اس گناہ سے جو میں نے کیا ہے اس گناہ کی سزا مجھے روز ملتی ہے، میں نے جھوٹ بولا، گناہ کیا۔ اس لڑکی کو سپاہی پکڑ کر لے گئے، گو کہ اس نے اسے نہیں مارا تھا لیکن پھر بھی اس نے اس کو بہکایا تو تھا، وہ عذاب جس کی سزا وہ مرنے کے بعد بھی بھگت رہی تھی۔ زناکاری ہمارے معاشرے میں عیب نہیں رہی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ایمان کی ایک شاخ ہے، یہی وہ ایمان ہے جو انسان کو اس قسم کے گناہوں اور پھر ان گناہوں کے عذاب سے بچا لیتی ہے۔ ہر انسان کا دوسرے انسان سے ایک پردہ ہے، لیکن انسان اخلاقیات سے گر جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اسلام میں یہ باتیں ہمیں ہماری آزادی سے روکتی ہیں۔ آزادی یہ نہیں کہ آپ کسی غیر محرم کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھیں۔ اگر اسلام میں عورت کو باپردہ ہونے کا حکم دیا گیا ہے تو یہ اس کی حفاظت کے لیے ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے گناہ کبیرہ سے بچائے، آمین۔